बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. I start with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is the 6th period of the mathematics, and now I am here with the chapter number 4. Today we complete the exercise 4b and 4c. Now first I am telling about the algebraic identity. So what is the algebraic identities? Now let me revise. Algebraic identity. The first algebraic identity is a plus b whole square, repeat with me, equal to a square plus 2ab plus b square. This is the first algebraic identity, and the second is a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square, and the third is a square minus b square equal to a minus b, a plus b. We have already discussed in the last video class, and these are the very helpful for expanding an algebraic identity. So you must memorize and write it in your rough copy at least 10 to 15 times so that it will be remembered. So an algebraic identity is an expression on the left and the right side. So a plus b whole square, this is the left side, is represented by a square plus 2ab plus b square. This is the right side. So if you given an algebraic identities in this form, a square plus 2ab plus b square, so this is the left side and can be it a plus b whole square. ठीक, यानी अगर आपको लेफ्ट साइड गिवन होगी तो आप राइट साइड करोगे, राइट साइड गिवन होगी तो आप लेफ्ट साइड करोगे. सो इफ यू गिवन एन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन दिस फॉर्म a square plus 2ab plus b square, so you will have to convert or factors in this way. These are the factors because here we have the two brackets, a plus b whole square into a plus b whole square. You can say these are the factors of this expression. Now if you given an algebraic identities in this form a plus b whole square, so you will have to convert in this way as we did in the last video class. हमने last video class में क्या किया था, हमें ये फॉर्म, ये एक्सप्रेशन गिवन थी तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था. So now start the exercise 4b. First we complete the exercise 4b. One part remain of this exercise. So question number 15, open the page number 125. Question number 15, part 1, n square minus n minus a into n plus a. This is the last part of this exercise, and expand and simplify. Expand means remove the bracket. So how to remove the bracket? First you will write this equation. If you notice here, here we are given the product form. Product means this bracket is multiplied, this bracket means n minus a is multiplied by n plus a. So which algebraic identities are applicable over here, so third algebraic identity, if you remember, third algebraic identities is a square minus b square equal to a minus b into a plus b.
This is the third algebraic identity. If you can see that this expression is similar to the right side of this term. So if you have to convert in this form, completely यहाँ पे अगर आप देखो तो सिमिलर है. कैसे? a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी. तो इट मीन्स a is represented by n on both brackets. So a is represented by 1, the value of a is n, and b is represented by a, so the value of b is a. Find the value of a and b. So substitute in this expression. तो अब आप क्या करोगे? इसमें क्या कर दोगे? Substitute कर देंगे हम a और b की वैल्यू को. So n square will be as it is minus. अब आपने क्या करना है, आपको ये कौन से साइड के सिमिलर है? राइट साइड के. तो लेफ्ट साइड पे आप कन्वर्ट कर दोगे. a अब ये है तो आप इस फॉर्म में करोगे. a इज रिप्रेजेंटेड बाय n. a की वैल्यू n है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? a की वैल्यू किसके बराबर है? n के. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n स्क्वायर माइनस माइनस b इज रिप्रेजेंटेड बाय a. तो b की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी. ये मैंने क्या किया, मेरे पास प्रोडक्ट थी, किसके प्रोडक्ट थे? 2 ब्रैकेट थे. थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के सिमिलर है. सो क्या किया मैंने? कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट साइड के. तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही आ गया. सो अब क्या करेंगे? 1 इज माइनस नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट. तो ये जो माइनस है मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ब्रैकेट से. सो कैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप इधर 1 ले सकते हो, यानी -1 इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इन द ब्रैकेट. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जितनी भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म मौजूद है, आप 1 बाय 1 उसको मल्टीप्लाई करोगे. नाउ द n विल बी एज इट इज, n स्क्वायर विल बी एज इट इज. सो -1 माइनस प्लस माइनस, इधर क्या साइन है? प्लस माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इज a स्क्वायर. सो पॉजिटिव n स्क्वायर, इधर आपके पास पॉजिटिव साइन है, एंड द नेगेटिव n स्क्वायर. इफ द साइन नेगेटिव सो वैल्यू मस्ट बी कैंसल्ड. तो ये कैंसिल हो जाएगा. द आंसर यू विल गेट द a स्क्वायर. तो इसका आंसर जो आपके पास आया वो क्या आया? a स्क्वायर. आपने इसको एक्सपेंड किया बाय यूजिंग एन अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. द सेकेंड पार्ट इज 15, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2. 16,947 स्क्वायर माइनस 16,944 इंटू 16,950. सॉल्व. रिपीट दिस क्वेश्चन once again. Multiply by 16,950. Now we will follow the same method as the part 1. इसी की तरीके से हम फॉलो करेंगे. बट आप अगर यहाँ पे नोट करो तो आपको क्या गिवन है? 16,944 multiplied by 16,950. Here we also given the product form, but here we need a product in a bracket form. यहाँ पे आपने क्या करना है, यानी product जो आपको given होगा in the 2 term, आपको 2 term में given है, ताकि ये आपके पास क्या हो सके, थर्ड अलजेब्रिक के आइडेंटिटी जो है हमारे पास उसके सिमिलर हो सके. तो यहाँ पे मुझे नीड है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म मुझे गिवन है, प्रोडक्ट मीन 16,944 इस मल्टीप्लाइड बाय 16,950. सो यहाँ मुझे ये जो प्रोडक्ट है, मुझे ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए ताकि ये थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी के सिमिलर हो सके. तभी हम इस पे अप्लाई कर देंगे ये वाला फॉर्मूला. अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड जो आइडेंटिटी है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. सो हम कैसे करेंगे? वी नीड दिस वैल्यू. फर्स्ट दिस वैल्यू विल बी एज इट इज. वी नीड दिस वैल्यू एज अ बेस फॉर्म, यानी मुझे आप इस वैल्यू को एक बेस के तौर पे यहाँ पे यूज़ करना है. 2 ब्रैकेट के फॉर्म में मुझे इनके प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाना है. तो कैसे बनाऊंगी? इसको बेस ले लीजिए आप. ये जो वैल्यू है आप इसको यहाँ पे क्या लोगे? बेस. बेस से मुराद मैं आप यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिखूंगी बल्कि ये लिख रही हूँ. किस तरीके से लिखूंगी? इसको मैं बेस बना रही हूँ
16,947 मेरे पास यहाँ बेस हो गई, एज इट इज़ यहाँ पे भी यही बेस रखेंगे 16,947। बट आप चेक करो यहाँ पे 16,944, यहाँ 16,947, बेस मैंने ये रखी है। स्टार्ट की 3 टर्म्स आपके पास सिमिलर है। अगर आप लास्ट 2 टर्म देखो, वैल्यूज़ देखोगे, स्टार्ट 3 वैल्यू सेम है, लास्ट की 2 वैल्यूज़ अगर आप देखो तो यहाँ 44 है, यहाँ 47 मैंने लिख दिया, तो आपके पास बैलेंस नहीं हो। तो आप इसे बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। मुझे 47 को 44 बनाना है, तो मैं कितने नंबर यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा वैल्यू लिख दिया तो मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी कितने नंबर की? 3 नंबर्स की। अगर आप -3 करते हो तो आपके पास एज इट इज़ ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 16,944 को इस तरह भी लिख सकती हूँ, ये बराबर है इसके। तो मैंने ये इस ब्रैकेट फॉर्म में कर दिया, इसका प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ब्रैकेट फॉर्म में चाहिए 2 टर्म्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस लास्ट 2 डिजिट अगर हम चेक करें तो यहाँ है 50, स्टार्ट 3 वैल्यूज़ आपके पास सेम है। आप यहाँ के लास्ट 2 वैल्यूज़ देखोगे 50, और यहाँ मैंने कम लिखा है 47, यहाँ मैंने 47 लिखा है क्योंकि बेस मैंने इसको बनाया है। तो अब मुझे 50 से 47 को 50 बनाना है, तो कितने नंबर चाहिए मुझे? 3 नंबर। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गई आपके पास। आप अगर देखो इसमें अगर 47 में 3 नंबर ऐड करोगे तो मेरे पास 50 आ गया, तो ये प्रोडक्ट हो गया। इट इज़ सिमिलर टू द थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो द थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग ओवर हेयर। a square minus b square is a minus b into a plus b. a minus b, a minus b, a plus b, a plus b. It means the value of a is in both bracket 16,947 and the value of b is in both bracket 3. इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो a है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? इस वैल्यू से, और b इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हो। अब क्या करोगे? सब्सटीट्यूट कर दोगे या पुट कर दोगे किसमें? एक्सप्रेशन में, क्योंकि a भी आ गई है। ये वैल्यूज़ आपके राइट साइड के सिमिलर आ रही है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के राइट साइड के सिमिलर होगी तो आप लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट साइड के बराबर होगी तो आप राइट साइड के कन्वर्ट कर दोगे। सो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज़ माइनस, अब आप पुट करोगे द वैल्यू ऑफ ए इज, ये चीज़ थी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए 16,947, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये थी। अब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ए की वैल्यू आपने पुट की, स्क्वायर आ गया, नेगेटिव साइन। द वैल्यू ऑफ बी इज 3 स्क्वायर। क्लियर? सो अब एज इट इज़ यही माइनस, जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस था तो माइनस ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, वही सेम मेथड है। इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यूज़ आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, आप इसे खुद सॉल्व करोगे। नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C में भी आप एज इट इज़ वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले को हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से सवाल पे किस सवाल पे कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम आइडेंटिटीज़ को लिख लेंगे। फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है हमारे पास a + b होल स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। सेकेंड इज़ a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंस है। द डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। नाउ मूव द एक्सरसाइज 4C। द क्वेश्चन नंबर 1 is a स्क्वायर प्लस 14a, पार्ट a स्क्वायर प्लस 14a plus 49. We will write this equation once again, a square plus 14a plus 49. Now you can see that
here we have been given the three terms. So which algebraic identities are applicable over here? A plus b whole square, a minus b whole square, they have the three terms. इन दोनों आइडेंटिटीज में आपके पास देख सकते हो थ्री टर्म्स मौजूद हैं. यहाँ पे सवाल भी मेरे पास थ्री टर्म्स में. सो इट विल श्योरली नॉट बी a माइनस बी होल स्क्वायर बिकॉज दे हैव द टू टर्म्स. सो आप यहाँ पे इन दोनों में से कोई अप्लाई करोगे. सो नाउ वी विल अप्लाई द a प्लस बी होल स्क्वायर because this identity has the three terms and all terms and the positive sign. So you can see that here we have been given the three terms and all terms has the positive sign. So यहाँ पे क्या है, definitely a plus b whole square is applicable for applying in a particular expression a square plus 2ab plus b square. So if you have to look at the notice, the first and the last term are the perfect square. So in this expression also the first and the last term are in the square form. So you will write the first and the last term in a square form. So हमें इसको सबसे पहले square form में लिखना है. लास्ट टर्म और फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास स्क्वायर फॉर्म में आप इसे लिखोगे तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने से पहले ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए, तभी आप उसका स्क्वायर बना सकते हो. सो यू विल राइट a square can be written as the a whole square and last term is 49 can be written as the 7 square because the 49 is the perfect square of 7. 7 into 7 equal to 49 and you can also written the 7 square equal to the 49. So 7 square can be write instead of the 49. आप 49 की जगह 7 स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है. दो सिमिलर आइडेंटिकल यानी 7 अपने ही आपसे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये आप इसका यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो. तो 49 का स्क्वायर है 7. सो इट मीन्स a इज रिप्रेजेंट. अगर आप यहाँ पे चेक करो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म इसका स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज रिप्रेजेंटेड बाय a. ठीक है, a रिप्रेजेंट कर रहा है a को. लास्ट टर्म जो b है मेरे पास, जो 49 को मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, लास्ट टर्म b इज रिप्रेजेंटेड बाय 7. नाउ मूव द मिड टर्म. फॉलोइंग दिस टर्म we will have to split this number. So 14a को भी आपने स्प्लिट करना है इसको फॉलो करते हुए. So आप सबसे पहले आप इसको फॉलो कर लो या खुद ही स्प्लिट हो जाएगा. 2 आप लिखो यहाँ पे, a is represented by a. 2 लिखा, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 7. सो अब आप चेक करोगे इस जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन है उसे चेक करोगे जो मैंने स्प्लिट किया है क्या वो मेरा सही स्प्लिट हुआ है. इस फॉर्मूले को फॉलो करके आपने इसको स्प्लिट किया है तो आप चेक करोगे a स्क्वायर प्लस 14a है तो 2 7 14 इंटू a इज 14 है तो ये स्प्लिट हो गया इसको फॉलो करते हुए. और 49 7 स्क्वायर को 49 कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन की जो राइट साइड थी कंप्लीटली सिमिलर हो गई है. तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म. सो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सो ये थी, अब ये लिख दोगे a क्या है मेरे पास, a की वैल्यू a ही है यहाँ पे. b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7. तो आप क्या लिखोगे 7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर होल स्क्वायर लग जाएगा. तो दिस इज द फैक्टर्स. आपने क्या करना था यहाँ पे फैक्टर्स बनाने थे. किसके, इसके फैक्टर्स बनाने थे. जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन थी इसके फैक्टर्स बना दिए बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज में सबके फैक्टर्स बनाने हैं. आप चेक करोगे कौन से आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई होगी, आप उसे अप्लाई कर लोगे. तो ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए इन अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. So now move the next part is the s square. Question number 3, part A, s square minus 144. First you will check this expression in an algebraic identities. So we could identify which algebraic identities are applicable over here. So यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 टर्म्स गिवन है. कौन सी 2 टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 144. सो कौन सी algebraic identities यहाँ पे मेरे पास applicable हो रही है, थर्ड algebraic identity. अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए
टू टर्म्स आपके पास मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ आप क्या अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर आर नॉट वैलिड बिकॉज दे हैव द थ्री टर्म्स। इधर यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास थ्री टर्म्स है, जबकि मेरे पास यहाँ पे टू टर्म्स है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a minus b into a plus b. So both term a square minus b square in the perfect square, in the square form. So you can write in the square form. यानी इसको भी आपने क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में लिखनी है। आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में गिवन है, ये टर्म आपके पास स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। तो यहाँ भी आपके पास ये जो परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, s तो आपके पास स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसे आपने किस में लिखना है, स्क्वायर फॉर्म इसका बनाना है। सो एस स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एस होल स्क्वायर minus 144 can be written as the 12 square because 12 into 12 is 144. आप 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 12 is multiplied by itself, the answer is 144. You can also written is the 12 square. तो 12 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, किसके बराबर होगा, 144. अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास किस वैल्यू का स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर मुझे कैसे पता चलेगा, आप रूट लोगे, कैलकुलेटर में रूट, आप रूट का होगा आपके पास ऑप्शन, आप उसे उसमें जो है अपनी वो वैल्यू फीड करोगे, 144 इक्वल टू का साइन दबा दोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा, यानी आप उसी को स्क्वायर करोगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर मैं 144 का रूट लेती तो मेरा आंसर 12 आता, तो इट मीन्स 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। तो इससे आप पता कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू, आप इसका रूट ले लो, जो आंसर आएगा वही उसका परफेक्ट स्क्वायर, उसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो इट इज़ अ सिमिलर टू द लेफ्ट साइड। अगर आप देखो ये सिमिलर है, एस स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, ए इक्वल टू एस एंड बी इक्वल टू 12। सो ये आपके पास क्या है, इस लेफ्ट साइड के बराबर है। सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। आपने किस फॉर्म में करना है, इसे प्रोडक्ट फॉर्म आप इसका यहाँ पे बना लोगे। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, किस तरीके से, अब आप इसे राइट साइड पे कन्वर्ट कर दोगे। सो यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब इसे सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में, इस आइडेंटिटी में, ये साइड थी, आप इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दोगे। सो ओपन द फर्स्ट ब्रैकेट, द वैल्यू ऑफ ए इज एस, वैल्यू ऑफ ए इज एस माइनस वैल्यू ऑफ बी इज 12। सो आप यहाँ पे पुट करोगे, इसको क्लोज करोगे फर्स्ट ब्रैकेट को, ओपन द सेकेंड ब्रैकेट, ए की वैल्यू है एस प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 12। सो ये आपका क्या हो गया आंसर, किसका, एस स्क्वायर माइनस 144 को जब आपने फैक्टर इसको एक्सपेंड फैक्टर्स बनाए तो इसके फैक्टर्स ही आ गए। नाउ मूव द नेक्स्ट पार्ट इज 59, क्वेश्चन नंबर 4, 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, 59 square minus 41. So here we given the difference of the two square. ये भी आपने क्या करना है, पहले सवाल आप देख लें क्या है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, यू कैन नॉट यूज अ कैलकुलेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटर बाय यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो विच आइडेंटिटीज आर एप्लीकेबल या इस अप्लाई ओवर है, कौन सी आप यहाँ पे एप्लीकेशन आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे, 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर, डिफरेंस मीन्स माइनस, किसका माइनस है, दो स्क्वायर की वैल्यू का। तो आपके पास दो स्क्वायर की वैल्यू कौन से आइडेंटिटी में आपके पास होगी, थर्ड, अगर आप देखो थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए
प्लस बी, इट इज़ सिमिलर टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी। ये लेफ्ट साइड के बराबर हो रही है, आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर टू थर्ड आइडेंटिटी। सो ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 59 एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 41। आप यहाँ पे वैल्यू देख चुके हो, तो अब आप क्या करोगे, दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई है, अब आप क्या करोगे, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट कर दोगे। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 59 माइनस बी 41, वैल्यू ऑफ ए इज 59 प्लस वैल्यू ऑफ बी इज 49। आप इस स्टेप के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ क्या थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करना था विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अप्लाई करके। इधर इस स्टेप के लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, 41 इज सब्ट्रैक्टेड टू द 59 इज 18, इन दो को प्लस करोगे 100, 18 इंटू 100 इज 1800। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे और चेक करोगे कि मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, 3a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 12। नाउ रिपीट, 3a स्क्वायर 12a plus 12. So here we given the three expression. So first algebraic identity, factors बनाने, factors करेंगे by using algebraic identity. So first algebraic identity has the three terms and the all term has the positive sign. So यहाँ सारे मेरे पास positive sign है, but first and the last term must be a perfect square. But 3 and 12 are not the perfect square because we don't have any identical number. They when they multiply together, the answer you will get 3 or 12. यानी आप चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, मैं अगर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर अगर 3 है तो नहीं आ सकता। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। आपके पास 2 सेम नंबर अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करो ना, तो आपके पास 3 आएगा ना आपके पास 12 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ 3, यहाँ से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, टेकिंग कॉमन 3, बाय टेकिंग कॉमन 3 आप यहाँ पे करोगे। सो यहाँ पे मैंने क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है। तो 3 इज रिटन इन आउटसाइड द ब्रैकेट, द रिमेनिंग पार्ट इज ए स्क्वायर। यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लोगे। जब मैंने 3 कॉमन लिया जो कि ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बचा। आप यहाँ से ए स्क्वायर लिख लोगे। टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम 12 इज 4। आपके पास जब आप इस 12 से 3 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आपके पास 4 तक आता है। इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया तो 4 आप यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4a प्लस अगेन वही 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 4 से 12 कहाँ तक आता है, 4 तक आता है, तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया। नाउ चेक द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन द ब्रैकेट आर इन द परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुके हैं। सो डेफिनेटली फर्स्ट अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग ओवर हेयर। तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है और तमाम टर्म्स पॉजिटिव साइन में, तो यहाँ पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब आपने क्या करना है, यू विल राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इन स्क्वायर फॉर्म। आप इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, सो 3 विल बी एज इट इज, जो कॉमन 3 था वो आपके पास ऐसे ही रहेगा। सो ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न इज द ए होल स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटर्न इज द 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, उसका 2 स्क्वायर करोगे तो आपका 4 जो है आंसर हो जाएगा। सो इट मीन्स ए इज रिप्रेजेंट बाय, आप इसे चेक करो मैंने क्या किया, इसको फॉलो करते हुए इन टर्म को, इन वैल्यूज़ को, जो ये एक्सप्रेशन जो भी है आपके पास, आप कह लो इसे, इसको मैंने इसके बराबर ले लिया। पहले स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आप जो है इसके बराबर ले लिया, यानी इसको स्प्लिट कर दिया, जैसे ये मेरे पास एक्सप्रेशन में गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ a मेरे पास बराबर आ रहा है, इसका a की वैल्यू a के ही बराबर आ रही है, और b की वैल्यू यहाँ से अगर चेक करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। नाउ मूव द मिड टर्म फॉलोइंग दिस एक्सप्रेशन, इसको आप फॉलो करोगे। 2 प्लस a, b को आप एज इट इज़
जैसे उसमें लिखा हुआ है आप एज इट इज लिख दो, मिड टर्म आपकी स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। सो आप लिखोगे यहाँ पे 2a इज रिप्रेजेंटेड बाय a, पहले आपने लिखा 2, a की वैल्यू पुट की, अब b की वैल्यू पुट करेंगे, b है मेरे पास 2, ठीक है, b की वैल्यू 2 है। सो अब आप चेक करोगे अपनी गिवन एक्सप्रेशन, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो बनी थी ये वाली, इसको अब आप चेक करोगे जो कि स्प्लिट हो चुका है किसके थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। तो a स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू a इज 4a और 2 इसका स्क्वायर आ गया आपके पास, तो ये बैलेंस हो गया। सो अब आपके पास ये क्या है, इट इज सिमिलर टू द राइट साइड, ये सिमिलर है राइट साइड के, सो आप किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट साइड में। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो a ब्रैकेट लिखोगे, जैसे ये है आपके पास a की वैल्यू प्लस द वैल्यू ऑफ b इज 2 होल स्क्वायर, द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपके पास है फैक्टर्स। नाउ मूव द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। इसमें भी आप आइडेंटिटी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे मेरे पास अप्लाई होगी। सो यहाँ है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए प्लस 3 स्क्वायर 9। अगेन आप इसको लिखोगे, ये आपका मैथमेटिक्स रूल है कि आप जब भी एक सवाल करते हो तो उसे लाजमी एक बार कॉपी करोगे। सो यहाँ भी आपके पास फैक्टर्स करने हैं, आप फैक्टर्स बनाओगे। फैक्टर्स का आपको टॉपिक बता दिया गया था कि फैक्टर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को स्प्लिट करना। अब आप इसको, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सप्रेशन से, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू ही आप फैक्टर्स करोगे, फैक्टर्स बनाओगे। सो हैव वी गिवन द डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर, आप देख सकते हो डिफरेंस मीन्स माइनस किसका डिफरेंस, 2 स्क्वायर का, ब्रैकेट स्क्वायर एंड यू कैन राइट द स्क्वायर ऑफ 9, आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ये तो अभी ऐसे स्क्वायर है तो आप लिख दो माइनस, सो 9 कैन बी रिटर्न इज द 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। सो अब आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कंप्लीटली डिफरेंस हो गया ये स्क्वायर का, डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर। सो थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन आपके पास अप्लाई हो रही है। तो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या गिवन है, 2 टर्म्स गिवन है, तो 2 टर्म्स आपके पास इस आइडेंटिटी में आपके पास मौजूद है। तो आप ये अप्लाई करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस b. So you can see that this expression is completely similar to the left side of this identity. So it means a square minus b square, a square minus b square, it means a is represented by a plus 3 and b is represented by 3. So, ये सिमिलर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये पूरे a के बराबर होगा, a प्लस 3, पूरी वैल्यू a की होगी माइनस the value of b is 3. So we have found the value of a and b, so we will have to substitute or put in this expression. It is the similar to the left side, so you will have to convert the right side. So अब आप इसको किस में convert करोगे, right side में convert करोगे। Open the first bracket, the value of a is a plus 3 minus the value of b is 3. First bracket close, open the second bracket, the value of a is a plus 3 plus the value of b is 3, ठीक, equal to a will be as it is, positive negative, if the sign are the opposite the value must be cancelled. So ये cancel हो गया, bracket a plus 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 होगा 3 plus 3 6. The factors of this एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या है, ये फैक्टर्स आ गए बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। नाउ मूव द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 81 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। Solve, you will write once again according to mathematics rule. So here we given the difference of the 2 square, you can see that the difference of the 2 square, difference means minus and bracket square and bracket square, but
here we need to write the perfect in the complete write in the perfect square, यानी आपने इसको क्या करना है, सॉरी perfect square नहीं, स्क्वायर में लिखना है, completely स्क्वायर में लिखना है. अभी आपके पास सिर्फ ब्रैकेट स्क्वायर में है. सो डिफरेंस है आपके पास स्क्वायर का. थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बट यू राइट इन अ स्क्वायर फॉर्म. फर्स्ट आप इसे किस में लिखोगे, स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे. यहाँ पे हम स्क्वायर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं. पहले तो मैं आपको यहाँ पे अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दूँ. क्या है मेरे पास, थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर है. तो थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैज अ डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. साफ आपको नजर आ रहा है, टू टर्म्स मौजूद थी तो डायरेक्ट आपने ये अप्लाई कर दिया. ठीक है, डिफरेंस है एंड वी कैन राइट अप easily in a square form because 4 and 81 are the perfect square. So you can write the 4 square. 4 can be written as a 2 into x minus 1 whole square minus 81 can be written as the 9. क्यों मैंने इसको लिखा, क्योंकि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 81 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9. तो ये आप इस फॉर्म में लिख दोगे. अब आप यहाँ पे चेक करो, इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर था, मैंने इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखा क्योंकि थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है. अब आप इसे अगर चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज 2 इंटू एक्स माइनस 1. आप चेक करोगे यहाँ से इसको कि सिमिलर है, तो वैल्यू ए की ये पूरी कंप्लीट होगी. द वैल्यू ऑफ बी इज, आप इसे चेक करो, माइनस वैल्यू ऑफ बी इज 9 इंटू एक्स प्लस 1. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए एंड बी की, दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है. अब आपने क्या करना है, इसमें पुट कर दोगे द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन दिस एक्सप्रेशन. इट इज सिमिलर टू द लेफ्ट साइड. सो अब ये लेफ्ट साइड के सिमिलर है तो कन्वर्ट होगा किसमें, राइट साइड में. इस फॉर्म में अब ये कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बराबर था तो इसके बराबर. ये देखिए ये एक्सप्रेशन मेरे पास लेफ्ट साइड के इक्वल है तो आप राइट साइड के बराबर लोगे. सो मेरे पास है द वैल्यू ऑफ ए इज 2x माइनस वाई. ठीक है, सॉरी 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस बी की वैल्यू है 9 इंटू एक्स प्लस 1. फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगी. ए है क्या मेरे पास, ए की वैल्यू ये रही 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस द वैल्यू ऑफ बी इज 9 इंटू एक्स प्लस 1. ब्रैकेट क्लोज. सो एक्सपेंड दीज ब्रैकेट. अब यहाँ पे हमने इस स्टेप में क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे यानी खोल देंगे. कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय x इज 9x प्लस माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9. ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन, 2x इंटू 2x माइनस 2 1 2 प्लस 9 इंटू एक्स इज 9x प्लस 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 9 1 9. क्लोज द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. सो वी विल सॉल्व द लाइक टर्म. आपने लाइक टर्म को सॉल्व करना है. x एंड x आर द लाइक टर्म, सो प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस. सो 2 is subtracted from 9 is the 7x. Greater value is negative, so answer will be in negative sign. 2 and 9 are the like terms. तो आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करोगे. माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2 इज 11. ग्रेटर वैल्यू इज नेगेटिव, सो आंसर भी नेगेटिव होगा. ये ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन होगा. लाइक वेरिएबल्स सॉल्व होंगे. 2x 9x लाइक वेरिएबल्स हैं तो आप इन्हें सॉल्व करोगे. 2x प्लस 9 11x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा. 9 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 2 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 7. ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव में है तो आंसर भी आपके पास पॉजिटिव में आएगा. दिस इज द फैक्टर्स इन अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ये आपके पास फैक्टर्स आ गए बाय यूजिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. द लास्ट पार्ट इज पार्ट डी. क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी. पार्ट डी है आपके पास.
13x square plus 26xy plus 13y square minus 13. First you will write 13x square, 26xy plus 13y square minus 13. So here we have given the 4 terms but 4 values, but an algebraic identities have the 3 terms or the 2 terms. So अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ तो मेरे पास 4 टर्म्स आ गई, फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग एन algebraic identity. So if you notice, start the 3 terms, it look like the first algebraic identity because they have the 3 terms and all terms has the positive sign. So first and the last term must be the perfect square or square, but x and y are the square. But problem is that the 13 is not the perfect square because we don't have any identical number. When they multiply together, you can never get the value of value of 13. यानी मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करो सेम नंबर को तो आपका आंसर आ जाए 13, क्योंकि मेरे पास दोनों सेम नंबर हो. 13 1 से 13 तो आ जाएगा, बट ये सेम नंबर नहीं है. कोई दो ऐसे नंबर जो अपने ही आपसे ही मल्टीप्लाई हो, यानी एक ऐसा नंबर जो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो 13 आंसर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर. सो आप क्या करोगे, फॉर मेकिंग कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर, आपने से परफेक्ट स्क्वायर ये स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, यू विल हैव टू टेक कॉमन 13. आप यहाँ से 13 को कॉमन ले लोगे. सो 13 इज रिटन इन आउटसाइड द ब्रैकेट, द रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर जो ब्रैकेट में बची प्लस टेकिंग कॉमन 13, 26 इज 13 के टेबल में 26 2 तक आता है आपके पास. सो आपने 26 जब कॉमन लोगे 13 इसमें से तो आपके पास 2 होगा. 2 इंटू एक्स वाई प्लस 13 कॉमन वाई स्क्वायर यहाँ से बचा माइनस ये भी कॉमन में आ गया, ये 13 भी कॉमन में आप ले लिया जो कि आपके पास ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. 13 आपके पास जब पूरी वैल्यू बाहर आ जाती है क्या बचेगा, 1. सो अब आप देख सकते हो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म कंप्लीटली तौर पे आपके पास स्क्वायर बन गई है, या परफेक्ट स्क्वायर भी आप कह सकते हो. सो फर्स्ट अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आप यहाँ अप्लाई करोगे. सो 13 विल बी एज इट इज, 13 अभी ऐसे ही लिखोगे. इससे आप इस एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए इस टर्म को आप ब्रेक करोगे. एक्स है स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले से इसके स्क्वायर फॉर्म में बना दो या परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में. तो आप एक्स को लिख सकते हो एक्स होल स्क्वायर. लास्ट टर्म क्या है, स्टार्ट 3 टर्म्स की बात करी हूँ. लास्ट टर्म है मेरे पास वाई स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज द वाई होल स्क्वायर. क्लियर, -1 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज. अभी हम इस 3 वैल्यूज़ पे अपना जो है ये अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इस पे ये अप्लाई हो रही है ये आइडेंटिटी. सो मूव द मिड टर्म, इसको आप फॉलो करोगे, इसी को आप डायरेक्ट फॉलो करोगे, ये एक्सप्रेशन खुद ही आपके पास ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, इसके खुद ही फैक्टर्स बन जाएंगे. 2 अच्छा ए क्या है, जब यहाँ पे आपके पास आपने इस फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो इट मीन्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड b इज रिप्रेजेंटेड बाय y. सो अब आप मिड टर्म जो है आपके पास इसको फॉलो करोगे और वैल्यू x और a और b को पुट कर दोगे. तो यहाँ 2 लिखा, वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज y. सो अब आप चेक करोगे इस एक्सप्रेशन को, इसको फॉलो करते हुए ये मेरे पास ब्रेक हो गई, स्प्लिट हो गई. ठीक है, इट इज सिमिलर टू द राइट साइड. तो जब सिमिलर है राइट साइड के तो यू विल हैव टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट द लेफ्ट साइड. सो आप इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो लेफ्ट साइड पे. सो अब मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ a इज x, सॉरी अभी हम क्या करेंगे, 13 अभी ऐसे ही आएगा क्योंकि कॉमन है, ये आंसर में रहेगा. इस यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये वाली जो मेरे पास राइट साइड थी लेफ्ट साइड में आप कन्वर्ट हो जाएगी. 13 ऐसे ही आ गया. a की वैल्यू है मेरे पास x प्लस b की वैल्यू है मेरे पास y होल स्क्वायर. ये इस साइड के बराबर थी, इसको इस लेफ्ट साइड के इक्वल ले लिया तो ये बन गया x प्लस वाई. वैल्यू ऑफ a x है, y b की वैल्यू y है, तो ये आपने पुट कर दी. -1 यहाँ से ये आ रहा था, आपने ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज. So you can see that here we have the values difference of the 2 square. जो ये values है मेरे पास ये क्या है, difference of the 2 square, bracket square, and you can apply the square. You can apply the square in 1,
द आंसर विल बी द सेम। आप 1 पे अगर स्क्वायर अप्लाई करते हो तो आंसर सेम आएगा, यानी ये डिफरेंस है 2 स्क्वायर का, ब्रैकेट स्क्वायर 1 पे मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1 इज 1, आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट इज सिमिलर टू द थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की सिमिलर आ गई। सो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पे अप्लाई करोगे। थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी, ए माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी। थर्ड अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, किस साइड के सिमिलर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड के सिमिलर आ रही है। सबसे पहले आप वैल्यू एक ही देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस वाई, ये पूरी वैल्यू ए की होगी, माइनस माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 1। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस वाई एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड के बराबर है, सो आप कन्वर्ट करोगे किसमें, राइट साइड पे। 13 विल बी एज इट इज, द वैल्यू ऑफ ए इज, आप यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस वाई, वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस वाई माइनस वैल्यू ऑफ बी इज 1, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करोगे, वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस वाई प्लस वैल्यू ऑफ बी इज 1। दिस इज योर आंसर, ये मेरा आंसर आ गया किसका, पार्ट डी का, 10 के पार्ट डी का। ये फैक्टर्स आ गए बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो नाउ मूव, ओपन योर डायरी एंड राइट डाउन द होमवर्क इन योर डायरी। So chapter 4, exercise 4B and 4C are completed. Complete the copy work. Complete your copy work by given content solution. You have to complete your copy work. ठीक है, now the next homework is practice the stuff of chapter 4. चैप्टर 4 आप प्रैक्टिस करोगे। Right. I hope you have got all concept clear and you must practice all question of the chapter number 4. चैप्टर 4 की लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना भी स्टफ पढ़ाया जा चुका है आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।